Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. So today actually I wanted to take revision for the two chapters. Some few topics are left for revision which is not able to take revision through MCQ. It will not be good because I will not get to know whether you will be able to solve that questions in the class exam or not. Okay. Good morning, ma'am. So actually first let me Morning, ma'am. okay. Good morning, ma'am. Some questions first, then I will get to know whether you are able or aware of that particular topics or not. Because that मैम आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है. network clear है बेटा मुझे सब. Yes, ma'am. Your network. Because the school आपका Wi-Fi नेटवर्क नहीं आ रहा है. is there. School Wi-Fi. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है. Sir, मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं है. मैम आवाज क्लियर. सबकी आवाज आ रही है मुझे सब दिख भी रहा है सब क्लियर है इधर. चेक नेटवर्क कनेक्शन. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही ना. मैम ऑल क्लियर. Ma'am, your network also red. यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन इज नो इशू. ओके यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन का वाईफाई है तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है. अदरवाइज ऑब्स्ट्रक्ट. Okay. Listen. When the king was lost in this row of I will give you time. farmer came to Take time here. the upper roof So let's start our class. of the I will Yes, ma'am. mention topics which are not satisfied to from your यस मैम. बस हो गया ना. आ गया चलो. मैम आपकी आवाज तो अब सही में नहीं आ रही है. मैम कुछ बोल ही नहीं है भाई. भाई उसके पहले टक्का टक आ रही राज भगवानी नहीं आ रही थी. नहीं आ रही थी. कितना रे. एकदम शांति. now listen. Okay. Now here network connection का कोई issue नहीं है. But here what today I want to take revision for some topics which are not satisfied to take with the MCQ. MCQ से मुझे वो टॉपिक लेना ठीक नहीं लगा क्योंकि वो न्यूमेरिकल पार्ट है और वो आपको क्या बोलते हैं करके और दिखाओगे तो ज़्यादा बेटर है. तो उसको जानने से पहले मुझे आपसे कौन से टॉपिक पे कर रहे हैं आज. दैट इज concentration and solubility. ये दो टॉपिक का हम आज रिवीजन करेंगे पहले. ओके. कंसंट्रेशन एंड सॉलिबिलिटी. ओके. वीडियो क्लियर बेटा मुझे ऐसा दिख रहा है. ओके. So today we will do the revision of concentration and solubility because this thing is there in your course. Now before starting this, can you tell me what is concentration? Bhavik. Bhavik, I am talking to you, beta. No. Garvik. I am talking to you, Bhavik. No reply. Bhavik. No. Gaurav. Okay, sorry. Yes, ma'am. Yes, tell me what is concentration. Yes, ma'am. What do you understand by concentration? Bolo. Ma'am, volume by volume concentration and mass by mass concentration. What do you
understand by the term concentration? Garvik, let me see your answer. हाँ बोलो बेटा. The number of solvent. Yes, Tanmay, your answer is correct. Shreyansh, your answer. एक बार What did Ravi मैम मैंने आंसर भेजा आपको। most I think brick? मैम आपको आंसर Shreya, your answer is also correct. Okay. Why I am not getting थैंक यू मैम। ये होगा। now? What is correct? मैम माय आंसर इज राइट। How was अभी अभी जिसको मैम माय आंसर इज राइट। गौरव you are taking. Jazzy correct? नहीं आ रहा है। रेड अर्थवर्म नहीं होगा। अच्छे से देख बेटा कोशिश कर। ये होगा। मैं पूछ कर रही हूँ। फिर ऑप्शन में कुछ और है तो वर्ड में नहीं पूछ रहा। So concentration is actually what? Concentration is actually the amount of solute present in a solution. Concentration का meaning क्या होता है? Amount, not number. Number नहीं, बस concentration 1, 2, 3 नहीं होता। तो आप लोगों ने maximum लोगों ने definition में क्या लिखा है? Number. Okay, number of solute. Number नहीं होता भाई. It is amount of solute in the given solution is called as what? Concentration. Okay, the amount of solute in the given solution is called as its concentration. Okay, समझ में आया? अब आपको क्या करना है? आपका कोर्स में है डेफिनेशन और इस कंसंट्रेशन कैलकुलेशन के न्यूमेरिकल्स। कंसंट्रेशन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी है। आपको परसेंटेज कैलकुलेशन करना है। अब आपका यहाँ पे क्या है? कंसंट्रेशन हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर आपका सल्यूट और सॉल्वेंट दो चीज होते हैं सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्यूशन में दो हिस्से होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, सॉल्यूट अगर सॉलिड है और सॉल्वेंट भी अगर सॉलिड है तो हम क्या कंसंट्रेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं? कंसंट्रेशन कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? मास बाय मास परसेंट, मास बाय मास, क्योंकि दोनों क्या है? सॉलिड है। अगर आपका सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है तो आप इसका सॉल्यूट का मास लोगे और लिक्विड का वॉल्यूम लोगे, तो उस टाइप का कैलकुलेशन होगा वो क्या होगा? मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, अगर आपका सॉल्यूट भी लिक्विड है सॉल्वेंट भी लिक्विड है तो दोनों का वॉल्यूम कैलकुलेट करना रहेगा और उस समय जो कंसंट्रेशन कैलकुलेशन होगा वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? सॉल्यूट और सॉल्वेंट कोई भी सॉल्यूशन में दो हिस्से होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट आपका अगर सॉलिड है, सॉल्वेंट भी अगर सॉलिड है तो दोनों का आपका मास लेना कंसीडर करना है। तो कंसंट्रेशन कैलकुलेशन करते समय हम क्या करेंगे? लेंगे मास बाय मास। ठीक है, और अगर सॉल्यूट सॉलिड है तो और लिक्विड सॉल्वेंट है, जाहिर सी बात है तो सॉल्यूट का मास लेंगे और सॉल्वेंट का वॉल्यूम। उस समय कंसंट्रेशन कैसे लिख लेगा? m/v। ओके, और दोनों अगर लिक्विड है तो यानी दोनों का वॉल्यूम लेना पड़ेगा, यानी आपका कंसंट्रेशन कैसे निकलेगा? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ओके, क्लियर है? अब आपको क्या है? परसेंटेज कैलकुलेशन, परसेंटेज कंसंट्रेशन। परसेंटेज कंसंट्रेशन आपको पता है, परसेंटेज कंसंट्रेशन में आपको कैलकुलेशन करने के लिए आपको कोई स्पेशल टेक्निक नहीं करनी है। आपको क्या करना है? इसी को इनटू 100 करना है, इनटू 100। आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है, परसेंटेज कंसंट्रेशन आप क्या करो? इसी को इनटू 100 कर दो। अब इसको मैं क्वेश्चंस के जरिए बता रही हूँ। आपको दिया गया है a solution is containing 20 ग्राम of copper sulfate dissolved in 220 ग्राम of water। 20 ग्राम कॉपर सल्फेट आपने लिया है, इसको आपने किसमें डिसॉल्व किया है? is dissolved in 220 ग्राम of water। अब आपको इसको क्यों क्या बोल रहा है? इसका परसेंटेज कंसंट्रेशन कैलकुलेट करो। You calculate its percentage concentration। परसेंटेज कंसंट्रेशन आपको इसका कैलकुलेट करना
परसेंटेज कैलकुलेशन करना है। मैंने क्या लिखा डेफिनेशन, सॉल्यूट में इन द गिवन सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कि किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है वो आपका क्या है, कंसंट्रेशन है। तो परसेंटेज कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूट के अमाउंट को ऊपर लिखेंगे। सॉल्यूट कौन है यहाँ, 20 कॉपर सल्फेट है, तो ये क्या हो जाएगा 20। अब सॉल्यूशन का कौन चीज से मिलके बना है, सॉल्यूट का सॉल्वेंट है कि नहीं, तो सॉल्यूट कौन है आपका कॉपर सल्फेट और वाटर क्या है आपका सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूशन दोनों का सम होगा, तो ये क्या हो जाएगा 20 प्लस 220। और सिंस मैं परसेंटेज कैलकुलेशन कर रही हूँ इसलिए क्या हो जाएगा इनटू 100। तो ये क्या हो जाएगा टोटल 20/240 इनटू 100। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका टोटल आएगा कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो रिप्लाई मी थ्रू द चैट सेक्शन। व्हाट हैपेंस श्रेयल, Sahil, what happened? Whether it is physics, chemistry or bio, you will be having minimum 25 marks of each. Ma'am, Yes. Your voice is lagging, not coming here. I can't hear you. हाँ कल after 25. Ma'am? Yes, yes. हाँ बोलो. हरित लगा. मैम आपकी आवाज आ रही है। नेटवर्क कनेक्शन वहाँ का प्रॉब्लम बेटा, यहाँ का नहीं है। देखो एक बार चेक करो, बाकी सब कुछ क्लियर है। लेट मी चेक। इंटरनेट कनेक्शन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। सो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ, आप मेरे को इसका कैलकुलेशन करके बताओ। ओके, मैं क्वेश्चन बोर्ड में लिख रही हूँ, यू जस्ट सॉल्व इट एंड टेल मी टू द चैट सेक्शन, देन इट विल बी विजिबल टू यू। ओके, $15 ml of ethyl alcohol, 15 ml ethyl alcohol is mixed with 60 ml of gasoline. Calculate the concentration of the solution. Calculate the concentration of the solution. Answer me this quickly. Answer me. 16.6 is not the answer, beta. Harit, your answer is not correct. Kal, your answer is not correct. 25 is not the answer. Kushil, not 6. कंसंट्रेशन कैसे करना है, सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन इनटू 100 बस करना है आपको। क्या यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन के लिए सॉल्यूट कौन है, अब यहाँ हु इज द सॉल्यूट, जो ज्यादा रहता है वो सॉल्वेंट रहता है, जो कम रहता है वो सॉल्यूट है। तो यहाँ पे ज्यादा कौन है, गैसोलीन। आपको हाँ, योर आंसर इज करेक्ट गौरव। ना यहाँ पे आपको देखो, कभी भी आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कंफ्यूजन होगा तो आप जस्ट सिंपल एक काम करो कि जो ज्यादा रहता है
जो सॉल्वेंट रहता है, जो कम रहता है, वो सोल्यूट है। तो इथाइल अल्कोहल यहाँ पे कम है, तो ये क्या है आपका सोल्यूट हो गया, और आपका गैसोलीन 60 ml है, वो आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए, सोल्यूट क्या है 50 डिवाइडेड बाय सोल्यूशन। सोल्यूशन में तो दोनों का सम आएगा, इसलिए 50 प्लस 60 इंटू 100। तो इसको अगर हम करेंगे तो क्या होगा, 15/75 इंटू 100। When you will solve this 15/75 into 100, you will get as 20%. You will get it as 20%. Is it clear to you? Clear है सबको? This way you will solve. ठीक है बेटा, ये आपका concentration calculation है। Okay, तन्मय करेक्ट, क्लियर है ना? तो ये दूसरा कैलकुलेट, आपको मैंने मोल वाला न्यूमेरिकल कराया है। ओके, ये न्यूमेरिकल शायद आपको सर ने करा दिया होगा। ओके, तो ये फिर से रिवाइज करना है, क्योंकि दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स आर आल्सो देयर इन योर कोर्स। सो व्हेनेवर यू सिट इन द एग्जाम, इट शुड नॉट बी लाइक you should not feel that अरे मेरे को तो नहीं आता। ओके, इज इट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट, नाउ आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन, जस्ट चेक इट। Wait, I'm giving. Okay. Percentage of the 3 elements. अच्छा, ये तो हो गया। 2 ml of acetone is present in 50 ml of aqueous solution. अगर 2 ml of acetone is present in 2 ml acetone, 2 ml acetone is present in 50 ml aqueous solution. Calculate the percentage concentration. Correct this for good. Manan 3.84. Yes, correct. Good, beta, good. 39 children, 40 participants are there, but I am getting but reply from only few. Raghav, good. Answer is correct. Done. Okay. Now I will teach you one more. I will explain one more topic. Then I will ask you questions randomly. Anybody, okay? You have to tell me answer. Gaurav, your answer is correct. Now next question is solubility. Next topic is your solubility. मैंने आपको क्या बताया था? आज 2 टॉपिक रिवाइज करना है, एक कंसेंट्रेशन और दूसरा क्या है आपका solubility. देखो, अब ये क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसंट्रेशन एंड सॉल्युबिलिटी? बहुत कंफ्यूजिंग है। गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट नहीं, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, छोटा सा डिफरेंस है। हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आपका हियर एंड देयर इट इज करेक्ट, बट वन इंपॉर्टेंट थिंग यू आर मिसिंग इन दैट स्टेटमेंट। ओके, यस गौरव, यू हैव टू। ओके, सॉल्युबिलिटी इज एक्चुअली द amount of solute which can be dissolved in 100 grams of solvent at a particular temperature to form at a particular temperature to form saturated solution. देखो, कंसंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस समझ में आ रहा है? कंसंट्रेशन क्या है? अमाउंट ऑफ
क्या है, कंसंट्रेशन। लेकिन सॉल्युबिलिटी हम क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में मेजर करते हैं। सॉल्युबिलिटी जो होता है वो क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट रहता है। सॉल्युबिलिटी जो रहेगा वो कैसा रहता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब होता है कि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो किसी भी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी भी चेंज होगी। अब सॉल्युबिलिटी होती क्या चीज है कि इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, कंसंट्रेशन तो हम कितने, देखो कंसंट्रेशन में मैंने सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स नहीं बोला, मैंने सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स नहीं किया, ओके। तो मैंने आपका ये जो कंसंट्रेशन है उसमें मैंने सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स नहीं किया, लेकिन सॉल्युबिलिटी आप कितने में मेजर करते हो, 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में मेजर करते हो, ठीक है। पहला डिफरेंस क्लियर है, सॉल्युबिलिटी यू आर नॉट मेजरिंग इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, sorry, concentration you are not measuring in 100 grams of solvent, but solubility you are measuring in 100 grams of solvent, ठीक? And it is the amount of solute present in 100 grams of solvent at a particular temperature to form saturated solution. 100 ग्राम सॉल्वेंट होना चाहिए, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए, और तीसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन कि आपका जो सोल्यूशन है वो कंप्लीटली सैचुरेटेड होना चाहिए, तभी उस समय जो आप कंसंट्रेशन मेजर करोगे तो वो क्या कहलाएगा, सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। इज दिस डेफिनेशन क्लियर टू यू और नॉट? इफ इट इज नॉट क्लियर जस्ट टेल मी अगेन। यस मैम। किसी को समझ में नहीं आया? ऐसा कोई तन्मय नॉट क्लियर? देखो बेटा डिफरेंस क्या, कंसंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी आपको दोनों एक जैसा दिख रहा है, लेकिन है नहीं एक चीज। आप डेफिनेशन देखो, आप मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि सॉल्युबिलिटी भी एक टाइप का कंसंट्रेशन ही है, लेकिन उसमें हमने क्या कर दिया है, सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स कर दिया है और टेम्परेचर फिक्स कर दिया है। प्लीज आस्क मी, देन आई विल बी एबल टू क्लियर योर डाउट। कल व्हाट प्रॉब्लम यू आर हैविंग? क्या हुआ बेटा? Solubility is actually the amount of solute which can be dissolved in 100 grams of solvent. मैंने क्या ऊपर कंसंट्रेशन में ऐसा कुछ अमाउंट मेंशन किया है क्या? नहीं किया। हाँ श्रेयांश टेल मी। Ma'am, my definition is right. क्या क्या? Ma'am, I am saying the definition of solid. ये बर्तन ले ले बेटा, ये जल्दी बर्तन ले ले, ले ले बेटा, आगे ले ले, पहले ये कर लिया। Ma'am, I am saying definition of हाँ definition solubility. आइए बेटा, आपके कोर्स में न्यूमेरिकल्स है, मैम आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है। और वो भी कटोरी लास्ट। Ma'am, can you explain a saturated solution? What is a saturated solution? Yes, I will explain. Okay. यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे देखो ये मैं ये क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि ये टॉपिक अगर मैं आपका न्यूमेरिकल्स में एमसीक्यू से लूंगी तो मैं आपको भी कुछ समझ में नहीं आएगा और मेरे को भी नहीं पता चलेगा कि आपको। अभी कंसंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस देखो। कंसंट्रेशन हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन देते हैं, ये नहीं है करने दो, आपको अपने मन से करने दो। ये है ना जो किया ठीक है, मतलब उसमें आपने बलबूते किया है, सबसे बड़ी बात तो ये। कितना मार्क्स मिला? ये सबमिट नहीं किया है, जितने भी। श्रेयांश को म्यूट कर दो। आपका जो कंसंट्रेशन है उसमें मैंने कोई सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स किया है क्या? नहीं किया। आप 100 ले सकते हो, आप 200 ले सकते हो, आप 500 ले सकते हो, 600 ले सकते हो, मैंने कोई अमाउंट फिक्स नहीं किया है कि नहीं। तो कंसंट्रेशन बस क्या है, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट है वो सिंपली कहलाता है क्या, उसका कंसंट्रेशन। लेकिन सॉल्युबिलिटी में हमने क्या किया, सॉल्वेंट का अमाउंट को फिक्स कर दिया, हमको कितना लेना है, 100 ग्राम सॉल्वेंट ही लेना है। दूसरा हमने क्या बोला कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही आपको वो कंसंट्रेशन मेजर करना है, और कंसंट्रेशन तभी मेजर करोगे अगर
सोल्यूशन जो है वो 100 ग्राम सॉल्वेंट में बना है और वो सैचुरेटेड सोल्यूशन है, अदरवाइज आप जो मेजरमेंट कर रहे हो वो सॉल्युबिलिटी नहीं है। कंडीशन समझ में आया? सॉल्युबिलिटी भी एक तरीके का कंसंट्रेशन ही है, बस फर्क ये है कि इस समय जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो 100 ग्राम सॉल्वेंट में कर रहे हैं, टेम्परेचर फिक्स है, और दूसरा हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन लेना है। अब आपने किसी ने पूछा कि मैडम सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड होता क्या है? सैचुरेटेड नहीं, जैसे मैंने अभी एक ग्लास लिया, ग्लास में मैं नमक डाल रही हूँ, नमक घुलते जा रहा है, तो वो क्या है? द सॉल्यूट इज गोइंग ऑन, मैं नमक डालते जा रही हूँ, वो घुलता जा रहा है, तो वो क्या है आपका? अनसैचुरेटेड। क्या है वो? अनसैचुरेटेड। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप उसमें नमक घोल नहीं पाओगे, अगर एक्स्ट्रा डालने की कोशिश भी करोगे तो नमक नीचे से डल हो जाएगा, तो उस पॉइंट में जो जब आप एक्स्ट्रा नमक डाल रहे हो तो वो घुल नहीं रहा है, तो उस पॉइंट में सोल्यूशन क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड कहलाएगा। इज इट क्लियर? ओके। कंसंट्रेशन, हाँ कंसंट्रेशन में मैंने कहीं मेंशन नहीं किया सैचुरेटेड, चाहे आप अनसैचुरेटेड लो, सैचुरेटेड लो, कुछ भी ले सकते हो। प्रियांश, योर पॉइंट इज करेक्ट। कंसंट्रेशन में मैंने ये नहीं बोला कि आप सैचुरेटेड लो अनसैचुरेटेड लो, लेकिन सॉल्युबिलिटी में मैंने स्पेसिफाई कर दिया आपको सिर्फ सैचुरेटेड सोल्यूशन लेना है, अनसैचुरेटेड नहीं। कल सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का मीनिंग क्लियर हो गया क्या बेटा? Ma'am, can you please explain once? Ma'am, there is a network issue. Okay, saturated unsaturated means am I audible now? कल am I audible? मैं आपको सुनाई, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes, ma'am. Okay, listen. तो आपको क्या करना है? अभी मैंने एक ग्लास लिया, सपोज है ना, मैंने क्या बोला? एक ग्लास लेना। आपने एक ग्लास लिया, इसमें थोड़ा सा आपने पानी डाला, ओके? अब इस पानी में आप क्या ऐड करते हो? सॉल्ट ऐड करते हो, सॉल्ट ले लो, शुगर ले लो, जो भी लेना आपको, ओके? आप डालो, अब क्या हो? आप एक चम्मच डाले घुल गया, 2 चम्मच डाले घुल गया, तीसरा चम्मच डाले घुल गया, यानी कि आप सॉल्ट ऐड करते जा रहे हो और सोल्यूशन में वो सॉल्ट घुलते जा रहा है ना? यानी कि यू आर एडिंग द सोल्यूट इन द सॉल्वेंट एंड इट इज गोइंग ऑन डिसॉल्विंग। तो इस कंडीशन में हम सोल्यूशन को क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड। अभी सोल्यूशन कैसा है? अनसैचुरेटेड। अभी सोल्यूशन कैसा है? अनसैचुरेटेड। ठीक है। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप एक्स्ट्रा सॉल्ट ऐड नहीं करोगे, एक आप पूरा हमेशा के लिए हमेशा एक का थोड़ी डाल पाओगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप सॉल्ट डालने की कोशिश करोगे तो वो घुलेगा नहीं, वो नीचे जम जाएगा, तो उस पॉइंट में आप सोल्यूशन को क्या बोलोगे? सैचुरेटेड। हेलो कल? Yes, ma'am. Clear. Ma'am, clear. कल दूसरा एग्जांपल चाहिए क्या बेटा आपको? हेलो कल, आई एम टॉकिंग टू यू बेटा, प्लीज रिप्लाई मी। No, ma'am. It is clear. और किसी को सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड समझ में नहीं आया क्या? ऐसा कोई है? कोई है क्या ऐसा जिसको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड समझ में नहीं आया? If it is not clear, tell me now. I will just clear it. Okay. I think it is clear. Now next. अब आपको मेन चीज, दूसरी चीज जो बतानी थी, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर और प्रेशर? What is the effect of temperature and pressure on the solubility? Okay? हाँ गौरव, या इट इज देयर। सॉल्युबिलिटी को आप 200 ग्राम में नहीं लोगे, ठीक है? नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। अब मैं टेम्परेचर से, जैसे अभी मैंने क्या लिया, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन लिया, ठीक है? सैचुरेटेड सोल्यूशन लिया, उसको मैंने क्या कर दिया? गर्म कर दिया। तो गर्म करने से क्या होता है? आपका जो वाटर जो है वो एक्सपैंड होगा। वाटर जो एक्सपैंड होगा ना, गैस इस फॉर्म में आने लगेगा, तो एनर्जी बढ़ेगी, तो एक्सपैंड होगा। तो एक्सपैंड होगा तो क्या होगा? आप उसमें और नमक डाल सकते हो, है कि नहीं? और नमक डाल सकते हो। तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या हुआ? एज सून एज आई इंक्रीज द टेम्परेचर, more solute can be added, that means solubility increases।
यानी कि क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी और अगर टेम्परेचर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगा। रिमेंबर दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी, कि आपका जो अगर सॉल्युबिलिटी है, अगर उसमें मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूं तो क्या असर पड़ेगा, टेम्परेचर लो कर रही हूं तो क्या असर पड़ेगा। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, if you decrease the temperature solubility decreases। सपोज अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया है कि पोटेशियम क्लोराइड है उसकी सॉल्युबिलिटी, अगर पोटेशियम क्लोराइड है उसकी सॉल्युबिलिटी है 35 केल्विन, पोटेशियम क्लोराइड मैंने लिया है, सपोज उसकी सॉल्युबिलिटी अगर 35 केल्विन में कितना है, सॉरी 283 केल्विन में, 283 केल्विन में कितना है 35 ग्राम। अगर मैं इस टेम्परेचर को बढ़ा दूं, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं कितना 293 केल्विन, ओके, टेम्परेचर को मैंने बढ़ा दिया, कितना कर दिया 293 केल्विन, तो इस कंडीशन में उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आया? इज इट क्लियर? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी घटेगा। तो अगर मैं बता दूं सपोज 36 ग्राम, दिस इज द assumptional value I have taken, not the exact assumption, मतलब मैंने सपोज करके आपको ऐसा बोला है। ओके, इज इट क्लियर? ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी टॉपिक समझ में आ गया, क्लियर है ना बेटा? अब प्रेशर का इफेक्ट किसका पड़ेगा कि नहीं, अगर सॉलिड और लिक्विड का सोल्यूशन है, अगर मैं बोल रही हूँ यू चेक द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी, आप मेरे को इफेक्ट बताओ सॉल्युबिलिटी पे, किसका इफेक्ट, प्रेशर का। अब सॉल्यूशन बनाना है भाई, सॉल्यूशन तो सॉलिड के बीच में बनता है, सॉलिड लिक्विड के बीच में भी बनता है, गैस और लिक्विड के बीच में भी बनता है। तो अगर आपका सॉल्यूट सॉलिड या लिक्विड है तो प्रेशर का कोई असर नहीं पड़ेगा सॉल्युबिलिटी के ऊपर, ठीक है। अगर आपका जो सोल्यूशन है उसमें सॉल्यूट जो है या तो सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो, तो अगर ऐसा कंडीशन है तो सॉल्युबिलिटी पे प्रेशर का कोई असर नहीं पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी पे प्रेशर का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो प्रेशर असर कब पड़ेगा, असर तब पड़ेगा अगर आपका जो दिया गया सॉल्यूट है वो क्या है, गैस। If your solute is gas, then with the increase of pressure, the solubility will increase. Okay, with the increase of pressure, the solubility will increase, and decrease of pressure, the solubility decreases. अब मुझे आप पहले इसके मेरे को डाउट बताइए जल्दी जल्दी, because running out of time, I want that you should be totally thorough with this topic. बताइए डाउट इसमें से बेटा, इसमें से किसी को डाउट है? 34 participants, but I am getting reply of Shrehil, Harit, Gaurav. Why so? Where are others? I think first chapter is not omitted. Na first chapter is omitted from your course, isn't that? Then how it will be asked? It will not be asked. तन्मय क्लियर, ओके। अब मैं चलो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से, क्लियर है? लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की अगर बात की जाए तो लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ गौरव, डिपेंड करता है बेटा। अब इसको गौरव ने इसको मैं 2 मार्क्स का सिंपल क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको वॉल्यूम कंसंट्रेशन कैलकुलेशन करने बोला तो हो सकता है कि वो 2 मार्क्स का आ जाए, छोटा सा है 2 मार्क्स का। अगर मेरे को 3 मार्क्स का बनाना है तो शायद मैं डाल दूं, मैं डिफाइन सॉल्युबिलिटी और साथ में सॉल्युबिलिटी का एक कैलकुलेशन दे दूं, ऐसा, ठीक है। सो मैक्सिमम 2 और 3 मार्क्स, नॉट मोर देन दैट, ओके। एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 2 या 3 मार्क्स का रहेगा। अगर आपने इसको सीख लिया तो बोनस है ना, क्योंकि ये तो फिक्स है कि न्यूमेरिकल आना ही आना है। यू आर अ हायर क्लास स्टूडेंट, सो न्यूमेरिकल विल बी देयर श्योर, ओके, क्लियर है? टाइम इज लेफ्ट बेटा, 4 minutes इज लेफ्ट। नाउ जस्ट सी द परसेंटेज आपको दिया गया है 3 एलिमेंट्स का, कैल्शियम कार्बोनेट नाम का एक एलिमेंट दिया गया है और आपको इसका परसेंटेज दिया गया है।
ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट है, तीनों का परसेंटेज आपको दिया गया है 40, 12 एंड 48, 40, 12 एंड 48। ओके, ठीक है। आपको बोल रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट है, उसमें दिए गए सैंपल में तीनों एलिमेंट का इतना परसेंटेज है। अब यू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कैल्शियम। आपको क्या करना है, यू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन 1.5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, in 1.5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आपको बोल रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट है, उसमें कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का इतना परसेंटेज है। अगर इतना परसेंटेज एक सैंपल में है, तो अगर मैं दूसरा सैंपल लूं कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसमें कितना है अमाउंट उसका 1.5 ग्राम, तो कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा? कोई बता सकता है मुझे? और मुझे सबसे पहले बताओ इसमें लॉ कौन सा लगेगा, कौन सा लॉ लगेगा, विच लॉ विल बी एप्लीकेबल? पहले तो ये बताइए मुझे। Gaurav, when you go to the NCERT, it is not big calculation. अच्छा बताओ, ये को अभी मैं फ्राइडे को भी मेरी क्लास है ना, आई विल टेल। Law of constant proportion. Good. Arik, it is good. Bhavik, good. क्यों यही बच्चे पढ़ रहे हैं क्या, बाकी क्या कर रहे हैं? हाँ? Why others are not replying? Only these two I am teaching and these two are listening or what? What others are doing? अब इसको अगर सॉल्व करके आप मुझे बताइए कि कितना होगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एक आंसर आपने मुझे बता दिया, करेक्ट है। अब मुझे इसका सॉल्व करके बताइए कि एटलीस्ट किसी एक एलिमेंट का तो अमाउंट बताइए मुझे कि कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा, किसी भी एक का बताइए। हाउ यू विल कैलकुलेट? हरित, कैल्शियम इज 0.6, गुड। हरित वाज फर्स्ट हु टोल्ड मी। भाविक, आपको तो पहले ही 40% बता दिया ना मैंने, कैसे होगा? सॉल्व कैसे करना है पता है? कैल्शियम कार्बोनेट का पहले आप मास निकालो। कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है? कैल्शियम का कितना है? 40, कार्बन का कितना है? 12, प्लस ऑक्सीजन कितना है? 3 × 60, दैट इज 48, टोटल आएगा 100 ग्राम। यानी कि 100 ग्राम में 40 ग्राम आपका कैल्शियम है, 12 ग्राम आपका कार्बन है, 48 ग्राम आपका ऑक्सीजन। तो अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में 40 ग्राम आपका क्या है, कैल्शियम है, तो 1.5 में कितना होगा? 1.5 कैल्शियम कार्बोनेट में कितना होगा? 40/100 × 1.5, 40/100 × 1.5, तो आंसर आएगा 0.6। इज इट क्लियर? ओके। तन्मय आपको ये बोला, आपको ये समझ गया, आपको बोला गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल है जिसमें कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का इतना परसेंटेज है, ठीक है। अब आप कैलकुलेट करके बताइए कि 1.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितना परसेंटेज होगा, अमाउंट होगा जिस कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है। क्लियर है इतना? अब पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या निकाला, 100 ग्राम। हर एक